कन्वेंशन ऑफ सिविल लाइबिलिटी ये करते थे। सो योर सिविल लाइबिलिटी जो कन्वेंशन है सीएलसी, दैट इज फॉर टैंकर्स। तो जो पोल्यूशन होता है टैंकर से, the CLC convention will cater to that. So we'll be doing CLC fund convention and supplementary fund convention. Now civil liability जो convention था, that is basically for oil pollution damage. Whatever damage is caused by oil pollution, जैसे spill हो गया, so it reaches the shore, affects your shoreline, affects your ecology, affects your beaches, affects your fishing, affects your birds. So the marine species being killed in your waterline, in your seashore or your in your marine areas, the cleanup required. So whatever the cost, वो सारा इसमें cover up. So this came up in 1969, renewed in 1992. So it is basically adopted to ensure that adequate compensation is available wherever oil pollution damage was caused by maritime casualties. Maritime casualties का मतलब है collision हो गया, grounding हो गया, तो oil pollution जो हुआ उसके कारण जो damage है उसका compensation will be catered by CLC convention. So it is for oil tankers. So ships mean the seagoing vessels and seaborne craft which are carrying oil as bulk. Owner means a person or persons registered as owner of the ship, or in absence of registration, whoever is owning the ship. And wherever there's a ship owned by a state and operated by the company where the state is registered, then the owner will mean such company. Oil in this case of CLC is persistent oil, chipakta hai. That is crude oil, fuel oil, heavy diesel oil, lubricating oil, whale oil, जो चिपकता है, that is oil as per CLC. Pollution damage जो है, that means loss or damage caused outside the ship carrying oil by contamination resulting from escape or discharge of oil from ship. Wherever such escape or discharge may occur, the cost of preventive measures and the loss of caused by preventive measures will be catered in this. Preventive measures matlab what reasonable measures have been taken by any person after an incident that has occurred so as to prevent or minimize your pollution damage. Incident means any occurrence or series of occurrence having the same origin which causes pollution damage. So ये जो CLC है that applies exclusively for pollution damage caused on territory, including territorial sea, which is 12 nautical miles of a contracting state, and the measures taken to minimize this kind of damage. लायबिलिटी अब क्या है, किसकी क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी का मतलब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? So the owner of ship at the time of incident or where the incident consists of series of occurrence, at the time of the first such occurrence shall be liable for the pollution damage caused to oil which had discharged because of this incident. अब इसमें exceptions भी है जो आपके बाकी मारपोल में exceptions था, तो वो सब exceptions इसमें भी आएगा. So no liability for pollution damage shall attach to the owner if he proves that this happened with the act of war. अब जैसे अगर आपका शिप जा रहा है and suddenly उधर से मिसाइल गिरा और आपका वो pollution हो गया, वो explosion हुआ, एक टैंक फट गया, pollution हो गया, so now owner will not be responsible because this is act of war. या civil war हो गया, जैसे आपका कई कंट्रीज में civil war suddenly हो गया,
और आप पोर्ट में थे और आपका वो गन फायर में पोल्यूशन हो गया, तो दैट वाज बेसिकली नॉट अ फॉल्ट ऑफ द ओनर। कई बार क्या सुनामी आ गया, एक्सेप्शनल इनएविटेबल, मतलब विदाउट रिपोर्ट आधे घंटे बाद सुनामी आ गया, अब आप उसमें तो भाग नहीं सकते। तो जो पोल्यूशन डैमेज हुआ दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सीएलसी, दैट्स एन एक्सेप्शन। बी, if it is wholly caused by act or omission done with intent to cause damage by third party, आपके जहाज पे पायरेट चढ़ गए और उन्होंने शिप को रैम करा दिया जेट्टी से, जिससे पोल्यूशन हो गया, so that was caused by an act or omission done with intent to cause damage by third party, so owner is not responsible. C part है when wholly caused by negligence or wrongful act of any government or authority responsible for maintenance of lights or navigation aids in exercise of the function. इसका मतलब है बॉयज उन्होंने सही नहीं लगाए। सपोज एक बॉय है, वो इंडिकेट करता है ऑल राउंड क्लियर वाटर, लेकिन ये एक्चुअली वहाँ शैलो वाटर है, और उधर आ गया ऑल राउंड क्लियर वाटर वाला बॉय, कहीं से ड्रिफ्ट होके आ गया। अब गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं किया, जहाज आके अग्राउंड हो गया, पोल्यूशन हो गया। तो जब फॉल्ट फाइंडिंग पता लगा तो पता लगा कि गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बॉय मेंटेनेंस नहीं की गया, उसके एंकर स्लिप हो गए, ऑल राउंड क्लियर वाटर वाला बॉय केम इन द सोल एरिया और आपका शिप अग्राउंड हो गया। सो that will be an exception of CLC. So the owner will not be liable to pollution damage. If the owner proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered damage or from negligence of the person, the owner may be exonerated wholly or partially from his liability to such person. जैसे आपका सेकंड इंजीनियर ने ऑयल मैन को बोला जाके सी चेस्ट वाल उसका खोल दे, या उसका एक टैंक का वाल खोल दे, वो जाके खोला है और पोल्यूशन हो गया। अब पता लग गया कि भाई उसने खोला है, ओनर की तो फॉल्ट नहीं है, तो उसको प्रूव करना है कि भाई ये उसने खोला है, दूसरे बंदे ने खोला है डैमेज कॉज करने के लिए, देन ओनर के ऊपर क्लेम नहीं आएगा। सो प्रोटोकॉल 92 में ये सब चेंज हो गया, तो कंपनसेशन लिमिट उसमें ऐसे फिट हो गए कि 92 वाले में फिट हुए कि when a ship is not exceeding 5,000 gross tonnage, liability is limited to 3 million SDR. तो SDR का मतलब होता है ये एक करेंसी, बास्केट ऑफ करेंसीज में बनी है, IMF ने बनाया है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का मतलब है ये एक करेंसी बनाई गई है विद 5 करेंसीज, 5 करेंसी के मिश्रण से ये बनाई गई करेंसी जिसमें डॉलर है, पाउंड है, येन है, यूरो है एंड चाइनीज रेमबी है और चाइनीज युआन, 5 करेंसी से। तो इसका डेली रेट आता है IMF की साइट में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की साइट में आएगा, बट ये सिर्फ कंपनसेशन या क्लेम्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं करेंसीज की, वो ये ट्रेडिंग नहीं होती है, दिस इज ओनली फॉर कंपनसेशन। रीजन बीइंग कि वो एक स्टेबल कंपनसेशन देना चाहते हैं, ये नहीं कि फ्लक्चुएट हो। So when your ship is not exceeding 5,000 gross tonnage, तो फिर आपकी liability is limited to 3 million SDR. For a ship of 5,000 to 1,40,000 gross tonnage, अब liability कैसी होगी? 3 million SDR तो 5,000 की थी, plus 420 SDR for each additional unit of tonnage. इसका मतलब सपोज जहाज का ग्रॉस टनेज 1,00,000 टन, तो 5,000 की तो आपको 3 मिलियन आ गई, बाकी की कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बाकी की होगी 95,000, क्योंकि 1,00,000 माइनस 5,000, तो 95,000 इंटू 420 प्लस
3 मिलियन SDR, वो टोटल मिला के जो कंपनसेशन आएगा वो ये है। सपोज आपका 25,000 का जहाज है ग्रॉस टनेज का, फिर क्या क्लेम्स आएंगे? 5,000 तो आपका 3 मिलियन है, 25,000 का आएगा 25,000 माइनस 5,000, दैट इज 20,000 इंटू 420। तो ये टोटल जो SDR आएगा वो क्लेम आएगा। लेकिन जो शिप विच इज ओवर देन 1,40,000 ग्रॉस टनेज, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू 57.7 मिलियन SDR। इससे ऊपर जितना भी हो लायबिलिटी 59.7 मिलियन SDR से ऊपर नहीं होगी। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया? आ गया ना? इंटरपोलेशन करना है बस, और कुछ नहीं है। नाउ 1992 कन्वेंशन में उन्होंने प्रोटोकॉल डैमेज को कर दिया कि एनवायरमेंटल कॉस्ट जो इनकर करती है उसको भी रीइंस्टेट करना है। तो इन्होंने EEZ को भी कवर कर दिया। पहले उन्होंने टेरिटोरियल वाटर किया, अब इसमें EEZ को भी कवर किया। So it allows expenses incurred for preventive measures to be recovered even when no spillage is there. Suppose आपने इंतजाम कर दिए तो इंतजाम का खर्चा भी तो देना है। आपने बोट्स लगा दिए, स्किमर लगा लिए, तो उनका जो हायरिंग का कॉस्ट है वो तो देना पड़ेगा। So protocol extended the spills to cover from sea, adapted to carry oil in bulk. तो ये आपके उस जहाज पे आया है। अब आया है 2000 अमेंडमेंट। तो 2000 अमेंडमेंट 2003 में आया। अब उन्होंने कहा भाई इसमें कॉस्ट तो बढ़ गई है, अब सेम कॉस्ट तो अब कंपनसेशन दोगे नहीं। तो उन्होंने कहा भाई और ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि अब हमारे जो क्लीन अप कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो उन्होंने कंपनसेशन लिमिट को 50% बढ़ा दिया दैन 1992 लिमिट्स, क्योंकि उन्होंने कहा भाई इतने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, अब इसको बढ़ाओ। तो अब जो पहले 3 मिलियन SDR थी, 5,000 के लिए होगी 4.51 मिलियन SDR। मतलब ये मैक्सिमम लाइबिलिटी है, इससे ऊपर नहीं होगा। ये नहीं कि आप सोचोगे थोड़ा सा स्पिल हुआ अब आप 5 मिलियन 4.5 मिलियन SDR दे दो, ऐसा नहीं। मैक्सिमम जो लाइबिलिटी है इतनी होगी। और CLC को इंश्योरेंस कराना पड़ता है। CLC सर्टिफिकेट आपके जहाज पे होना चाहिए। आपके पास इसका इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर CLC क्लेम्स। दिस इज ओवर एंड अबव द शिप इंश्योरेंस। आप क्लेम के लिए इंश्योरेंस कराओगे। एक आता है शिप के स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस, एक होता है कार्गो का इंश्योरेंस, और एक होता है क्लेम के लिए इंश्योरेंस। तो ये पोल्यूशन क्लेम का अलग से इंश्योरेंस कराना पड़ता है, और उसकी कॉपी आपको देके CLC सर्टिफिकेट मिलती है। अब जैसे अब इंडिया आ रहा है तो वह MMD को भेजेगा भी CLC सर्टिफिकेट चाहिए, तो बोलेगा चलो PNI क्लब की कॉपी बताओ इंश्योरेंस की, वो भेजो, 5 या 10 हजार रुपये भेजो, और फिर उसके एजेंट से CLC सर्टिफिकेट ले जाओ। और अगर CLC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो यू कांट सेल, तो आप इंडिया में आ ही नहीं सकते या सेल आउट नहीं कर सकते, एक्सपायर हो गया तो। वैलिडिटी होती है इसकी 1 साल, जैसे आपकी इंश्योरेंस की 1 साल होती है, CLC सर्टिफिकेट इज ऑल्सो वैलिड फॉर 1 ईयर। अब इसमें लिमिट क्योंकि 50% बढ़ गई है, तो 5,000 जब 1,40,000 का हो गया 4.51 प्लस 631 इंटू द डिफरेंस फ्रॉम दैट 5,000 से कितना डिफरेंस होगा आपका ग्रॉस टनेज का आपके जहाज। फॉर शिप्स ओवर 1,40,000 ग्रॉस टनेज, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू 89.77। पहले थी 59.7, अब होगी 89.77 मिलियन SDR। अब ये तो लिमिट कर दी है, लेकिन सपोज इससे ज्यादा क्लेम आए तो क्या होगा? कहाँ से पैसा आएगा? क्योंकि ये तो शिप ओनर अपने इंश्योरेंस कंपनी से दिलाएगा, बाकी का पैसे कैसे आएगा? सपोज आपका 150 मिलियन SDR का क्लेम आ गया, अब क्या करोगे? तो उसके लिए इन्होंने एक और कन्वेंशन बनाया, फंड कन्वेंशन। ये क्लेम्स आपके ज्यादा हैं,
अब कहाँ से पैसे मिलेंगे? तो उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जो 1 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट करे उसको फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, अभी आपको बताएंगे। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, ये डेली आपके आईएमएफ की साइट में मिलता है। जरा जरा इसको टाइप करो और देखो भाई एसडीआर मिला कि नहीं मिला, और आज का रेट बताओ, तो अब पता लग जाए कि आपको एसडीआर के बारे में पता लगा कि नहीं। आज का रेट बताओ भाई, एसडीआर का क्या रेट है? हाँ, क्या रेट है भाई एसडीआर का आज? 27 तारीख है। अभी तक निकाला नहीं? एसडीआर का रेट इस साइड से निकाल लो। मैं टाइप करके निकालूं या तुम लोग निकालोगे? बड़े स्लो निकालने में यार। हाँ, इतने लोग हैं, एक ने भी नहीं निकाला। Sir, 1.446410. $1 equals to 1 SDR equals to रुपीज के हिसाब से निकालो। 1.446402. अरे रुपया के हिसाब से निकालो। सीधा गूगल में टाइप करो 1 SDR इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, अभी निकल आएगा। गूगल में टाइप करो 1 SDR इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज INR, इज हाउ मच इक्वल टू हाउ मेनी INR? 105 सर। 105. 105 रुपए, ठीक है। अब जैसे पिछले साल वो 100 रुपए था, तो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, तो इट इज अबाउट 105। तब से आप क्लेम देख लो कितनी ज्यादा क्लेम, 89.77 मिलियन SDR। मल्टीप्लाई करो 105 रुपए से, देखो कितना आता है। तो आपका इसमें कंपलसरी इंश्योरेंस कवर है। अगर आपने कंपलसरी इंश्योरेंस नहीं कराया, आपको CLC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। आपका शिप सीज हो जाएगा, यू कांट सेल। तो बड़ा मैंडेटरी सर्टिफिकेट है CLC सर्टिफिकेट। So it is required to maintain compulsory insurance cover to cover his part of payment in oil pollution. After getting the required insurance cover, the oil tanker owner approaches Flag State, who issues the tanker a CLC certificate, validity 1 year. That certificate is kept on board. Mandatory certificate है ये। अब क्या है कि lot of countries had said that कि भाई हमारा क्या है कि पोल्यूशन हो गया इतना ज्यादा, और ओनर दे रहा है वो 89.77 दे रहा है, बाकी कहाँ से आएगा? तो उसके लिए दे अडॉप्टेड अ फंड कन्वेंशन which was adopted in 18th December 71, came in force in 78, फिर एक 1992 प्रोटोकॉल आया, ये 1996 में आया। सो ये एक और टियर ऑफ मैकेनिज्म बना रहा था आपके पोल्यूशन डैमेज के लिए। मतलब जैसे आप सर्दियों में पहले बनान पहनते हो, गरम बनान, फिर शर्ट पहनी, उसके बाद स्वेटर पहना, फिर जैकेट पहना ठंड से बचने के लिए। तो उसी तरह ये पहला CLC कन्वेंशन आया, वो आपके क्लेम्स के लिए। उसके ऊपर कितना होगा, वो सेकेंड टियर ऑफ कन्वेंशन बना, सेकेंड टियर ऑफ कंपनसेशन बना फॉर ऑयल पोल्यूशन डैमेज, उसका नाम था फंड कन्वेंशन। और इसके ऊपर जो क्लेम आए थे उसका नाम था सप्लीमेंट्री फंड कन्वेंशन। अब इसमें क्या है, फंड कन्वेंशन में था विच ऑयल इंपोर्टर्स, जैसे अबाउट इंडिया, जो कंट्री 1,50,000 टन से ज्यादा, इक्वल टू और मोर देन, इससे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है,
So only, not export, importers. It was not for the exporters, but importers. तो जो import करता है, they have to make a annual premium. जैसे हम इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, हर साल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इंटरनेशनल ऑयल पोल्यूशन कंपनसेशन फंड को, which is headquarters in London. And basis that your maximum compensation available is 203 million SDR. That means ये जो 203 मिलियन SDR है वो 89.77 को मिला के, मतलब 89 आपको जो अमाउंट मिलेगा 203 माइनस 89.77, इससे 89.77 तो ओनर से मिल रहा है, और 203 माइनस 89.77 फंड कन्वेंशन से मिलेगा. दैट मीन्स इंटरनेशनल IOPC फंड से वो आपको अमाउंट मिलेगा जो भी अफेक्टेड है. सो 89.77 प्लस फंड का क्लेम मिला के 203 मिलियन SDR है, और इंडिया इसकी पार्टी है क्योंकि इंडिया तो इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया इज पार्टी टू फंड कन्वेंशन. अब आया तीसरा लेयर, सप्लीमेंट्री फंड. ये तीसरा लेयर है आपके ऊपर. तो ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है. जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं जैसे US है, उन्होंने साइन किया क्योंकि वहां पोल्यूशन क्लेम बहुत हैवी होते हैं, तो उन्होंने वहां साइन किया है. So this is a third layer of oil pollution compensation and is kept optional for countries to follow it. तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिल जाता है 750 मिलियन SDR. CLC प्लस फंड तो 203 मिलियन SDR है, और बाकी जो बच गया 750 माइनस 203 वो सप्लीमेंट्री फंड कवर करेगा. इंडिया ने इसको साइन नहीं किया. अब इसमें क्या क्या समझ नहीं आया, मैं दोबारा बोलूं फिर. एक बार और दिखा दूं. चलो एक बार और दिखा दीजिए. CLC तो समझ आ गया ना, तो फंड कन्वेंशन एक बार दोबारा बोलता हूं. तो 89.77 तो आपको चलो मिल गया, ठीक है, क्योंकि वो तो वो CLC कन्वेंशन से आपने इंश्योरेंस कराई, तो इंश्योरेंस कंपनी से 89.77 मिल गया. लेकिन अगर आपका क्लेम आया 200 मिलियन SDR, अब कहां से मिलेगा? तो 200 माइनस 89.77 मिलेगा आपको फंड कन्वेंशन से, बिकॉज ये सेकेंड टियर ऑफ ऑयल पोल्यूशन कंपनसेशन मैकेनिज्म है. और यहाँ जो एक्स्ट्रा पैसा है, दैट इज जो इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर जो पैसा है, उसको कहाँ से मिलेगा? वो IOPC फंड से मिलेगा जो लंदन में है. अब IOPC फंड में आप लोगों को जो इंपोर्ट कर रहा है 1,50,000 मेट्रिक टन ऑयल और मोर पर ईयर, उसको चंदा देना पड़ेगा. ठीक है, एनुअल कंट्रीब्यूशन मतलब चंदा देना पड़ेगा IOPC फंड को, और IOPC फंड उस चंदे से कंपनसेशन देगा. उस चंदे से IOPC फंड इज गोइंग टू गिव यू कंपनसेशन which will be 203 million SDR minus 89.77 million SDR. ये तो क्लियर हो गया कि नहीं? फंड कन्वेंशन क्लियर हुआ तो सप्लीमेंट्री फंड पे आऊं. चंदा बोला मैंने, चंदा मतलब हर साल चंदा देना पड़ेगा, कंपलसरी है ये, इंडिया ने साइन किया है. सप्लीमेंट्री फंड कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. तो ये तीसरा लेयर है आपके कंपनसेशन का. तो इसमें टोटल अमाउंट जो कंपनसेशन मिलेगा वो 750 मिलियन SDR है, जिसमें CLC 89.77 है, फंड हो गया 203 माइनस 89.77, और बाकी बचा सप्लीमेंट्री फंड. तो सप्लीमेंट्री फंड हो गया 750 मिलियन SDR माइनस 203 मिलियन SDR. ये हो गया सप्लीमेंट्री फंड का अमाउंट. टोटल अमाउंट मिलेगा 750 मिलियन SDR.
और ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। अब क्लियर है, पीएलसी क्लियर हो गया, कोई डाउट? इसके बाद एलएलएमसी कराएंगे, तो एलएलएमसी पे आते हैं। ओके सर। अब कई बार होता है ना कि आपका जहाज ने जेट्टी पे ठोक दिया, उधर से क्रेन गिरी, अब उसका क्लेम कौन देगा? या जेट्टी पे बंदे थे, दो मर गए, दो जहाज के मर गए। जेट्टी पे ठोक दिया, क्रेन गिरी, दो बंदे मर गए जहाज पे, दो बंदे जहाज पे मरे और दो बंदे मरे जेट्टी पे। अब बताओ क्लेम कैसे होगा? इसका कुछ आंसर है? हाँ, इसका कुछ आंसर है? जेट्टी में जो बंदे मरे उसको कौन देगा पैसा, और जहाज पे जो बंदे मरे उसका पैसा कौन देगा? सर जहाज का तो जो इंश्योरेंस होता है वही देंगे सर, हाँ, जहाज का इंश्योरेंस ज्वाइनिंग के होगा। टाइम पे, हाँ, तो ज्वाइनिंग के पीएनआई टाइम पे जो क्लब देगा ना, वो पीएनआई क्लब देगा। और जो Yes, जेट्टी में मरा वो एलएलएमसी से होगा, और जेट्टी पे जो डैमेज होगा वो एलएलएमसी क्लेम से होगा। जैसे आपने देखा होगा, वो पहले आया था ना डार्डनल बॉस्फरस में एक बल्क कैरियर, सीधा ही उसमें एक कोई रेस्टोरेंट था, उसके अंदर घुस गया। रिवर साइड में रेस्टोरेंट था, इसका एंकर बराबर ड्रैग किया और बल्क कैरियर उसके रेस्टोरेंट में घुस गया, तोड़ ताड़ दिया। वो डैमेज कौन देगा? दैट विल बी अंडर एलएलएमसी। तो एलएलएमसी जो है मैरीटाइम क्लेम्स की लायबिलिटी को लिमिट करता है, ये नहीं कि आप बहुत सारा पैसा दो। तो इसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल इंजरी की क्लेम्स है, प्रॉपर्टी क्लेम्स है इंक्लूडिंग डैमेज टू अदर शिप्स, आपके जहाज ने दूसरे जहाज को मार दिया, या जेट्टी पे चिटसन वाले आर्म को तोड़ दिया, या गैंट्री क्रेन तोड़ दी, ये सब क्लेम्स विल बी कवर्ड अंडर एलएलएमसी। तो ये 1976 में आया, लेकिन इसमें फोर्स में आया 1986 में, 10 साल बाद आया। अब इनमें ये सारे क्लेम्स नहीं होंगे एलएलएमसी में। क्लेम्स फॉर सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब टग एक और जहाज को बचा रहा है, वो क्लेम नहीं होगा। क्लेम्स फॉर जनरल एवरेज, एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ये एएसएम में होता है, मास्टर्स में, फिर भी बता देते हैं। जनरल एवरेज का मतलब होता है, सपोज आपके जहाज कंटेनर शिप पे 500 कंटेनर्स हैं, आग लग गई, जैसे अभी कल श्रीलंका में एक कंटेनर शिप पे आग लगी, तो वैसे ही आग लग गई, 200 कंटेनर जल गए। अब टग को बुलाना पड़ा और जहाज को बचा लिया गया और 300 कंटेनर बच गए। तो जो जल गए उनको तो चलो पीएनआई देगा, बचाने के लिए तो पीएनआई देगा नहीं ना। जल गए वो तो पीएनआई क्लेम ले लेगी, इंश्योरेंस क्लेम ले लेगा। अगर उन्होंने इंश्योरेंस किया तो मिल जाएगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो खर्चा हुआ आपके टग्स का, फायर फाइटिंग का, बचाने का, और 300 कंटेनर बच गए, उसका खर्चा कौन देगा? तो उसको कहते हैं जनरल एवरेज। तो वो 300 कंटेनर जो थे, उनके जो ओनर्स हैं या शिपर्स हैं, उनके अंदर में उनमें क्लेम लगेगा कि ये पैसा दोगे तो कार्गो छूटेगा, नहीं तो वेयर हाउस में रहेगा। आया समझ? समझ आया कि नहीं आया? बड़ा सरल भाषा में समझाया मैंने, yes, sir. समझ आ गया? सरल भाषा में समझाया। यस अब जैसे मैं जीएम था पहले शिपिंग लाइन का, शोर पे, नॉट कंटेनर्स की। हमारे पास काफी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी थी, तो आई वाज जनरल मैनेजर नॉर्थ इंडिया ऑफ दैट कंपनी। और शिपिंग तो छोड़े मेरे को बहुत साल हो गए ना, 96 में छोड़ा। पढ़ाना तो अभी शुरू किया 6 साल पहले। तो जब मैं जीएम था नॉर्थ इंडिया दिल्ली का, तो एक क्लेम आया हमारे में। हम कंटेनर्स काफ़ी फ्रेट फॉरवर्डिंग करते थे, तो वेयर हाउस था हैम्बर्ग में,
तो क्या हुआ, एक कंटेनर में कॉकरोच निकल आया और वो कॉकरोच हैम्बर्ग में वेयर हाउस में आ गया और वो एक कॉकरोच को देख के उन्होंने पूरा वेयर हाउस सील कर दिया और काफी जबरदस्त क्लेम डाल दिए, क्योंकि उनको फ्यूमिगेशन करना पड़ा पूरे वेयर हाउस का और वेयर हाउस को सील भी कराना पड़ गया। अब यहाँ क्या है, हमारे पर क्लेम आ गए क्योंकि हम थे हम लोग ने बीएल इशू किया थे, हमारे पर क्लेम आ गया तो हमको बोला शिपर से क्लेम लो। अब लड़ाई होगी कि क्लेम किस पे डालें। वो कहता हमारे में तो था नहीं, वो कहता नहीं तुम्हारी फोटोग्राफ आई, तुम्हारे उसमें से निकला है। तो जितने हमारे एलसीएल कंसोलिडेशन होता था यहाँ, मतलब एक कंटेनर में 5-5 शिपर, 6-6 शिपर, 10-10 शिपर भी होते थे। तो एक कंटेनर में 10 शिपर हो गए तो 10 शिपर पे क्लेम मार दिया, 10 के 10 पे। अब आप अपने वॉल्यूम के बेसिस पे क्लेम दोगे, इतना क्लेम है, डिवाइड करो, नहीं तो वहां माल छूटेगा ही नहीं। डिस्चार्ज बोर्ड होल्ड कर दिया माल, बेटा आपके कंसाइनी को तो जाएगा नहीं, अब बैठे रहो। तो वो कहते नहीं देंगे, बोल नहीं देंगे, ठीक है बैठे रहो, छूटेगा नहीं माल, पड़े रहो। फिर फाइनली क्लेम दिया तो माल छूटा। बहुत लड़ाई हुई ऑफिस में, बहुत आगे हंगामा किया। तो ये सारी झगड़े हो जाते हैं। अब आगे जनरल एवरेज समझ, हाँ समझ आया? यस सर। यस सर। Yes, चलो sir. ठीक। ऑयल पोल्यूशन अभी सीएलसी पड़ा है, उसी में ऑयल पोल्यूशन आएगा, तो एलएलएमसी में नहीं आएगा। क्लेम्स फॉर एचएनएस, हाईली नॉक्शियस सब्सटेंस, जो NX2 का है, उसके क्लेम अलग है, वो इसमें नहीं आएंगे। छठा क्लेम है मेंबर्स ऑफ क्रू एंड सर्वेंट्स ऑफ ओनर, जो पीएनआई का है, जो जैसे आपके क्रू मर गया, क्रू में इंजरी आ गई, वो क्लेम एलएलएमसी में नहीं आएगा। छठा क्लेम है रिमूवल ऑफ रेक्स। एक रेक रिमूवल कन्वेंशन आया हुआ है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, एएसएम में है। रेक रिमूवल कन्वेंशन का मतलब है, अगर आपका जहाज अग्राउंड हो जाता है और रेक बन जाता है, तो आपकी ड्यूटी है उसको निकाल के क्लियर करना है। ये नहीं कि आप लोग छोड़ के भाग जाओ। जैसे पहले बॉम्बे में आप देखो कितने सारे रेक्स हैं, बहुत सारे हैं, तो ओनर छोड़ के भाग गया और पोर्ट ने भी क्लियर नहीं कराया और जहाज जो आ रहे हैं उनको मुसीबत हो गई। तो रेक रिमूवल क्लॉज क्या है कि अगर आपका जहाज रेक बनता है तो आपको उसको क्लियर अप कराना है। एक तो वो है, अगर आप नहीं करा सकते तो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा क्लियर अप कराने के लिए। जो खर्चा होगा क्लीन करने का, वो रेक रिमूवल में गवर्नमेंट आपको चार्ज करेगी, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो LLMC कन्वेंशन अलाउज शिप ओनर्स टू लिमिट द लायबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर शिप से कोई भी डैमेज हो, आप मन माना पैसा, मन माने से अमाउंट पैसा नहीं क्लेम कर सकते। कोर्ट में फाइल कर दें कि मेरी उंगली टूट गई, $1 बिलियन दे दो भाई, तो ऐसे थोड़ा कोई भी दे देगा $1 बिलियन। तो उसके लिए उन्होंने इस कन्वेंशन में लिमिट बनाया है कि इस लिमिट से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते बेसिस शिप सोर्स डैमेज, इससे ज्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, तो अलाउ द शिप ओनर सैल्वर्स टू लिमिट देयर लायबिलिटी, कि भाई हमारी लायबिलिटी लिमिट हो, लेकिन अगर जानबूझ के आपने ये किया तो लिमिट नहीं कर सकते लायबिलिटी। सपोज आपका इंजन फेल हो गया, वो तो आपकी गलती नहीं है ना, वो तो इंजन फेल हो गया, तो आपकी लायबिलिटी लिमिट हो जाएगी। लेकिन सपोज आपने जानबूझ के ही स्टॉप इंजन दिया ही नहीं, हाफ हेड में चल गए जेट्टी के ऊपर, उस टाइम आपको गड़बड़ हो गई, आपने बोला चढ़ा दो जहाज, तो जानबूझ के किया, तो उसमें लिमिट होगी नहीं लायबिलिटी। ठीक है। सो ये unless it is proved that the loss resulted from his personal act, omission, committed with intent to cause such loss or recklessly, जिससे आपको पता लगे कि लॉस होगा, जानबूझ के किया है, तो लिमिट नहीं होगी। लॉ में इसको हिंदी में समझाना बेटर है क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत टफ होती है। सो LLMC में 50 कंट्रीज ने साइन किया, सारी कंट्रीज ने नहीं किया,
50% ने 57% ने साइन किया। अब इसमें नए लिमिट्स आ गए, तो नए लिमिट्स क्या, 1996 में इन्होंने लिमिट्स बनाए अमेंडमेंट्स में, और limit of liability for claims of loss of life or personal injury on ships not exceeding 2000 gross tonnage is 3.02 million SDR। मतलब 2000 ग्रॉस टनेज का जहाज है, जेट्टी पे मारा, कोई बंदा मरा या काफी सारे बंदे मर गए, तो टोटल लाइबिलिटी होगी 3.02 मिलियन SDR, लॉस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल इंजरी ओनली। इससे बड़े जहाज का कैलकुलेशन 2000 से 30,000 तक का, तो 2000 का आपको बताया था कितना था, 3.02, तो 2000 का आ गया 3.02, और जो डिफरेंस आएगा वो मल्टीप्लाई कर दो 1208 से। मतलब जैसे 22,000 टन का जहाज है तो 3.02 मिलियन SDR तो 2000 का हो गया। बाकी जो 20,000 बचा, मतलब 22 माइनस 2000, तो 20,000 बचा, 20,000 इंटू 1208 करोगे SDR, उतना आपका टोटल क्लेम होगा। सिमिलरली फॉर 30,000 टू 70,000, 906 SDR मल्टीप्लाई करोगे, और एक्सेस ऑफ 70,000 604 SDR मल्टीप्लाई करोगे। इसका मैंने एक टेबल बनाया था, तो मैं आपको टेबल दिखा दूं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टी पे करेंगे। सो LLMC क्लेम्स जो है 2000 तक के लिए 3.02 मिलियन SDR, 2000 टू 30,000 ग्रॉस टनेज के लिए 3.02 मिलियन SDR प्लस 1208 इंटू इंक्रीज फ्रॉम 2000 जितना भी हुआ। सपोज वो 10,000 का है तो 3.02 मिलियन SDR प्लस 10,000 माइनस 2000 8,000 इंटू 1208, तो ये आपका इतना टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 30,000 का उसी तरह आ गया 3.02 मिलियन SDR प्लस 28,000 इंटू 1208, तो टोटल अमाउंट इतना आ गया। फ्रॉम 30,000 टू 70,000 आप इस अमाउंट को, यहाँ तक 30,000 का कैलकुलेट कर दिया, उसके ऊपर 906 से मल्टीप्लाई करोगे जो डिफरेंस है। तो जैसे इसमें आया हुआ है इतना अमाउंट प्लस 40,000, अगर 70,000 है, इंटू 906, तो इतना अमाउंट क्लेम मैक्सिमम कर सकते हैं। अबव 70,000 it will be multiplied by 604 SDR and added। तो 70,000 का आपने ये किया, प्लस अगर 1 लाख का है तो 30,000 डिफरेंस हो गया इंटू 604, तो टोटल अमाउंट, ये अमाउंट आ गया मैक्सिमम क्लेम्स। तो क्लियर हो गया कैलकुलेशन? यस सर। या स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो, समझ आ जाएगा आराम से। यस ले लिया, चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी क्लेम्स क्या है। तो लिमिट ऑफ लायबिलिटी फॉर प्रॉपर्टी क्लेम्स नॉट एक्सीडिंग 2000 ग्रॉस टनेज, लाइफ और पर्सनल इंजरी का आधा हो गया, वो 3.02 है, तो ये 1.51 मिलियन SDR आ गया। लार्जर शिप्स का हो गया 2000 टू 30,000, 1.51 प्लस 604 इंटू द डिफरेंस,
and from 30,000 to 70,000, 453 into the difference, excess of 70,000, 302 SDR into the difference. अब ये था आपका प्रॉपर्टी के लिए। अब आपका एक और क्लेम आता है विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ लाइफ और पर्सनल इंजरी टू पैसेंजर्स ऑन पैसेंजर शिप। इसका अलग है, और इसमें क्या है कि सपोज आपके जहाज ने एक पैसेंजर शिप को मार दिया, ठीक है, तब उसके कितने क्लेम हो जाएंगे? तो सपोज 20 पैसेंजर मर गए तो क्लेम क्या होगा? तो सपोज उसमें 2000 पैसेंजर से ऑथराइज टू कैरी, तो होगा 1,75,000 SDR इनटू द नंबर दे आर सर्टिफाइड टू कैरी इज 2000, तो टोटल क्लेम उतना होगा। सपोज एक पैसेंजर मरा और उसने क्लेम कर दिया, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। 1,75,000 इंटू 2000। जैसे अभी आपने देखा है कि रामदेव के अगेंस्ट उत्तराखंड IMA ने क्लेम किया हुआ है 1000 करोड़ कंपनसेशन दो भाई हमें डिफेमेशन केस के लिए। तो उस तरह से देखा है ना, रामदेव ने बोल दिया बेटा आप ठीक कर सकते हो, मेरे को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। नहीं सही बोला है उसने, गलत तो बोला नहीं है, क्योंकि जितने भी मैं अभी केसेस देख रहा हूँ, दोनों कई केसेस हैं जिन्होंने डबल डोज लगाया। कि हमारा एक कोलीग है, उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, अभी कल हुई है, वो करा रहा है आपके मॉड्यूलर कोर्सेज करा रहा है। उसके पहले उसके ब्रदर की डेथ हुई थी, दोनों डोजेस लिए थे, उसने खुद दोनों डोजेस लिए, उसकी वाइफ ने दोनों डोजेस लिए, इसकी वाइफ की भी डेथ होगी और भाई की भी डेथ होगी। हमारे नीचे भी बंदे हैं, दोनों डोज लगा के आए, डेथ हो गई। फिर हमारे सामने सारी फैमिली को हो गया, आदमी 51 ईयर्स का, दोनों डोज लगाए, डेथ होगी हार्ट अटैक से। तो बेसिकली अगर आप देखो, ज्यादातर लोग दोनों डोज के खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। लेकिन अब आपको फॉरेन जाना है तो आपको तो डोज लेनी पड़ेगी, क्या करोगे? नहीं कुछ कर सकते हो? नहीं सर। फौरन थोड़े दिन बाद जाएंगे सर। अब ये देखो ना कि अभी इतनी सारी डोज आ रही हैं, आपके अंदर एक लाइव वायरस को मार के डाल रहे हैं, ठीक है, नहीं मरा, वो अधमरा हो गया, पूरा नहीं मरा, थोड़ा सा उसमें जान है, तो आप में अंदर कितना तांडव करेगा आपको पता है? कोई वायरस आपके अंदर कितना तांडव करेगा और वो कितना स्ट्रॉन्ग वायरस है, आपको क्या पता? यस सर। कई बार जो हैं केसेस हैं जो बीमार हो जाते हैं, आपने वैक्सीनेशन लिया, बीमार हुए, अभी केसेस हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, कोरोना वैक्सीन एक डोज लगाया, उसके बाद 1.5 महीने से बीमार ही चल रहे हैं, 1.5 महीने से बीमार चल रहे हैं। एक और मेरी वाइफ की फ्रेंड थी, उसने डोज लगाया, वो हॉस्पिटल ही पहुंच गई, 1.5-2 महीने बाद छूटी है अभी, सिर्फ वैक्सीनेशन कराने के बाद। ये सब कई चीजें हो गई वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन तो मैंने भी कराया है सर। नहीं, अब वही तो है ना, हर एक बॉडी की अलग अलग लेवल है, हर एक बॉडी का सिस्टम अलग है। तो आपकी बॉडी ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है एक बंदे का रिएक्ट हो सकता है। मेरी बॉडी बहुत हाइपर रिएक्टिव है, हाइपर एलर्जी है, मैं लगाऊंगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, तो मैं तो लगा ही नहीं रहा हूँ। सर मैं भी लगाया हूँ बट फीवर आ गया सर। नहीं, फीवर तक तो ठीक है, फीवर तक तो ठीक है, वो तो ठीक है, आपकी बॉडी फाइट कर रही है। लेकिन अगर आप में हाइपर एलर्जी है तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। मैं जब बचपन में था, मधुमक्खी के छत्ते में गिर गया था, 200 मधुमक्खियों ने काटा था, 5 साल का था, तो तब से मेरे में हाइपर एलर्जी है, ये चक्कर है। अब 200 मधुमक्खी किसी काट ले तो मर ही जाएगा ना, जिंदा रहेगा क्या? कई लोग तो एक ही मधुमक्खी काटे के खत्म हो गए वहीं। तो आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे? खतरनाक है ना, खतरनाक हो जाता है। अब हमारे पहले एक कुलीग थे, वो इफेक्ट नहीं कर रही है, नहीं, अब हमारे पहले कुलीग थे,
वो दूध से एलर्जी थी, दूध एंड दूध के प्रोडक्ट से एलर्जी थी, तो चाय भी नहीं पीते थे और ना पनीर खाते थे, ना दूध पीते थे, ना दूध की कुछ भी चीज हो दूध की वो खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा हाल था। तो एलर्जी किसी की चीज की भी हो सकती है। सर ऐसा बहुत है सर, दूध भी नहीं खाता है, दूध का कोई भी चीज नहीं खाता है। हाँ होता है। और वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तेल पिलाते हैं। हमने एक देखा था ऐसे केस, हॉस्पिटल में थे, काफी पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात। तो छोटे बच्चे थे तो वहाँ देखा कि बच्चे के बड़े बाल उगे हुए। हमने तो बोला ये तो बहुत बड़ा बच्चा लगता है, कहता नहीं ये तो अभी कुछ दिन का बच्चा है। तो उसको एक बोतल में तेल डाल के पिला रहे थे। बोले तेल पिला रहे हो? कहता नहीं भाई वो तो दूध पीता नहीं है, एलर्जी है तो उसको तेल पिला रहे। मैंने कहा वाह भाई वाह, दुनिया में तो अलग अलग टाइप के लोग हैं भाई, तेल पिला रहे हैं बच्चे को। तो आपके अंदर वैक्सीन डाल रहे हैं जिसका अभी कुछ पता नहीं है, थोड़े बहुत में ट्रायल हुए हैं, किस रीजन की है नहीं पता, किस टाइप का वायरस वो पता नहीं, और आपकी बॉडी की रिएक्शन क्या है वो भी नहीं पता। तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो खत्म हो गया। तो मतलब सर वैक्सीन को अवॉइड ही करना चाहिए। नहीं आप देख लो आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वैक्सीन अवॉइड करो, आप अपनी सिस्टम देख के देखो। अगर आपको हाइपर एलर्जी सर है ये सिस्टम सब कैसे देखा जाएगा, सिस्टम कैसे देखा जाएगा सर? साइड आप अपने डॉक्टर, आपका फैमिली, तभी तो पता चलेगा सर। नहीं फैमिली डॉक्टर आपको जानता है ना, जो आप बचपन से जिसको दिखा रहे हो उसको बोलो भी मैं लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, वो आपको बताएगा लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। मेरे घर में दादा दादी दोनों लिए, दोनों डोज लिए, ठीक है सर। नहीं वो तो मेरे फादर 90 हैं, उन्होंने भी दोनों डोज ले लिए, ठीक है। मेरे फादर 90 हैं, उनको कोरोना भी हुआ था लास्ट ईयर, तो उन्होंने अभी दोनों डोज लगाए, वो ठीक है। बट वो हमारे में नहीं चलेगा ना। मैं ये नहीं करूँगी आपके फादर ने लगाया तो आप भी लगवा लो, ऐसा तो केस नहीं है ना। आपकी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है। यस सर। पहले चेक करा के करो, क्योंकि एक बार लगा लिया, मैंने 2 बार कैंसिल किया है, दोनों बार लगाया और आखिरी मोमेंट पे कैंसिल किया। ये पता नहीं मौत आ जाए तो क्या करोगे तो फिर कैंसिल कर दिया, तो पढ़ाएगा कौन आपको? नहीं सर, ठीक किया आपने। इसीलिए कैंसिल कर अच्छा दिया। सर। फिर हमें ख्याल आता है भी पढ़ाएगा कौन आपको, फिर तो गड़बड़ हो गई, छोड़ दिया, जैन मैंने कहा नहीं लगता। जैन सर कैसे हैं सर? अभी तो 5वें हफ्ते पे चल रहे हैं, वो छुट्टी पे। हाँ कल तो बता दो तुम कैसे हैं। सर ऑक्सीजन बाबा चढ़ा सर तब था। ठीक हो जाएंगे सर। बाबा सर भी अभी बीमार चल रहे हैं, वो भी बीमार चल रहे हैं। सौजन्य अभी ठीक हुआ था, अब फिर आज हाई फीवर हो गया। अभी ठीक हो गया था आफ्टर 1.5 महीना छुट्टी के बाद, 2 दिन पढ़ाया, आज फिर हाई फीवर हो गया। तो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अभी क्या करें बताओ। अब बताओ, हमारे एक कोलीग है, उसकी वाइफ की डेथ भी हो गई, अभी कल हुई है, बता रहा था मैं। कपिला का नाम सुना है? कैप्टन कपिला, हाँ उसकी उनकी वाइफ भी की डेथ हो गई। कल ही तो डेथ हुई वाइफ की। हाँ सर बता बेचारे रहे। की भाई की, हाँ बेचारे की भाई की भी डेथ हुई है इसी महीने। तो उसको बेचारे को बहुत पर्सनल लॉस हो गया ना, और जबकि सारे डोज लगाई है उन्होंने, ये चक्कर है ना। चलो इसको खत्म करते हैं। एसडीआर जो है, इंटरनेशनल रिजर्व क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट मेंबर कंट्रीज, जो आपको बताया था। एंड ऑफशोर रिजर्व जो है ये बास्केट ऑफ करेंसीज है, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज युआन, इसको मिला के बनाया जाता है। तो ये टॉपिक भी खत्म हुआ और आपका टाइम भी खत्म हुआ, ठीक है। ज़्यादा टाइम लेता नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को आराम का टाइम खाया जाता है, और हमें आपके आराम के टाइम को खाने का हक नहीं बनता। तो टाइम आपको पूरा मिले, है ना। आराम का टाइम 15 मिनट का तो कम से कम मिले, कि नहीं मिले? मिले सही है सर। ना। हाँ भाई चलो आराम करो, फिर आराम करो।